Good evening. There. Hello. Can you all hear me? Yes, Yes. sir. Okay, ठीक है. So we're doing a small chapter today. That is kinetic theory of gases, numericals. Okay. From the digest, from the GTB. So I have taken some questions from the GTB of star mark. You must be knowing what is star mark, right? It is from the GTB. So we'll be doing that thing. In this chapter, most of the people may be knowing only because Tahir sir has also taken 2 to 3 times revision of this chapter, and I have sent you the video lectures also. And NEET वालों और JEE वालों को तो आता ही रहेगा. Why? Because we have done it full fledged, right? Hello. Okay. चलो शुरू करते हैं. Question number 50. If the we are starting with question number 50 only because first question is 50 only. From that, density of oxygen दिया हुआ है, rho is given as how much? 1.44 kg per meter cube. Pressure is how much? 10:5 Newton per meter square. Find the RMS velocity of oxygen. Oxygen का mu कितना होता है? 32 grams. Hello. Can you all tell me which formula do you use? Hello. 1/3 rho CRMS square. We have done this, okay? Here's 1/3 rho CRMS the whole square. Yes, very good. So we need to find CRMS. CRMS is going to become under root of 3p by rho. That will become under root of 3 into 10 raised to 5 by rho. Rho is given as 1.44, and you will get the resultant answer in meter per second. Has everyone understood? Very simple questions are there. Hello. Yes, sir. Yeah, sir. No one is answering. ठीक है. Yes, So this sir. is Yes, sir. basic formula, and fine. So, Yeah, beta. superposition of waves, I think you last time said that beats will do next time. Beats. Which beats? Okay, ठीक है. देखते हैं. पहले ये खत्म तो हो जाने दो. Last part आपने कहा था कि we'll do it next time also. Beats का theory बाकी है क्या? I think don't some remember. are left, sir. ठीक है. We'll discuss that thing and we'll see if, because I need to find the PDF also inside. ठीक है. चलो देखते हैं. Yeah. Question number 51. Calculate the ratio of mean square speed of molecules at 30 degree and 120 degree. तो क्या फर्क है? इसका फर्क है टेम्परेचर का ना. One is 30 Kelvin and second is 120 Kelvin. I want to find the ratio of CRMS1 to CRMS2. What is the formula? Come on, please help me out. Huh? If I tell you everything, no use. Root 3p by rho. No, there's no T inside, na beta. Yes. CRMS will become under root 3RT by mu. RT by mu. You remember this formula? Yes, sir. What all are constants inside 3R and mu is also constant. Except T, everything is constant. So CRMS will become root T CRMS upon 1 will become root of T1 by T2. So 3 4s are 12, will become root of 1/4. It will become half. Correct, na? Understood. Okay, simple questions. Fine. Next one. Achha, they are not asking you root mean square. Huh? Hello. What are they asking you? Mean square. So iska square kar do. Means RMS ka square they are asking you. They are not asking you root nikal ke. So this answer will be this. Huh? Hello. Yes or no? Yes, sir. Please pay attention. Huh? This is okay. Question number 52 पर आते हैं. A gas cylinder is at pressure P. If the masses of all molecules are made 1/3 of the original value, means M2 is becoming 1/3 of M1, and the speeds are doubled, means speed 2 is becoming twice of speed 1. Find the resultant pressure. So I need P2 in terms of P1. P का formula we know is 1/3 rho C RMS the whole square, which could be written as 1/3 density को लिख सकते हैं mass by volume into CRMS the whole square. But that will also not do. Can I say बड़ो m is छोटो m into n?
Do you remember this thing? Okay. Now, can I say P is proportional to small m and C RMS the whole square, rest all remaining constant. So can I say P2 upon P1 will be M2 upon M1 into C RMS 2 upon C RMS 1 the whole square. Now here M2 upon M1 is 1/3 and CRMS 2 upon CRMS 1 will become twice ka square will become 4. So this answer will become 4/3. So P2 is going to become 4/3 times of P1. This is just a basic calculation. I hope you all have got the answer. Understood or not? Hello? Yes, sir. You should know the basic calculation. These questions are all for 2 to 3 marks in your board examination. So those who are appearing boards, they need to take care with the formulas. Basic formulas are there. Chalo. Question number 53 पर आते हैं. Show that RMS velocity of oxygen is √2 times of sulfur dioxide. Okay, so can you help me out with the molecular masses, which is their molecular mass of oxygen is 32 gram and molecular mass of SO2 will 32 become plus 32, 64. 64 gram. 32 plus 32, right? Sulfur is 32, right? Hello? Yes, sir. Mu मिल गया. CRMS, you know, is under root of 3RT by mu. Can I say that T's are the same because they are telling you at STP? So can I say CRMS will only differ with the root of mu inverse? Yeah. Yes. Can I say CRMS of SO2 upon CRMS of O2 will become under root of mu O2 upon mu SO2. SO2? So O2 will become 32 by 64 will become root of 1/2, right or not, sir? Hello? If you divide, you get the same answer, right or not? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Correct it is. Now, question number 54, many times in the NEET and the boards, they ask you this kind of question. I have told you before also, I have told the NEET people and the JEE people the shortcut. At what temperature will oxygen molecule will have the same RMS speed of that of helium molecule? Means they want us that C RMS of both of them have to be the same. C RMS is under root 3RT by mu of all the 1. And this is 3RT by mu of all the 2's. What will cancel throughout? 3R, 3R. Can I square both sides? Yes, sir. You know the shortcut, right? I had told you this thing. Equate that T by mu. I had told you at that time. Now, which two gases are there over here? There's oxygen and helium, right? So T oxygen upon mu oxygen will be T helium upon mu helium. At what temperature will oxygen molecule? So T oxygen I need, mu oxygen is 32. T helium is given at STP. STP is 273. Mu helium is going to become 4. Okay, so this answer will become 8 times. So TO2 will become 8 into 273 dash Kelvin. Getting it or not, sir? Hello. This is very important sum from the board's point of view, beta. Hello. Yes, sir. 3 marks. Okay, मूड हुआ तो अच्छा 3 marks, नहीं तो 2 mark. ठीक है, चलो आगे. Question number 55. Compare the RMS speed of hydrogen molecule at this much with the RMS speed of oxygen molecule. What happened? Same sums again and again. What is CRMS ka formula? Under root? Man, 30 by mu. 30 by mu. We just need to divide, man. How much is T1 given? 127 degrees Celsius means 27. 127 degrees Celsius. That's How much? 273. 400 Kelvin. Yeah. And with RMS speed, what is the T2 given? 300 Kelvin. 300 Kelvin. This is of what molecule, man? Hydrogen, na? This is of what? Oxygen molecule. And I know the mu's also. Hello. Can Yes, you sir. can you do the sum, man? Can you do the sum? CRMS 1 upon CRMS 2 will become under root of T1 upon T2. 1 upon T2 Root into of mu 2 by mu2 mu 1. upon mu1. You can do it. I am not doing this thing. Correct or not? Hello. Yes, sir. Simple question only. We have done this. Huh? This is asked. Huh? Board examination में 2 to 3 marks. It comes in the examination. So please be aware of this thing.
Okay, most of the people will get it only. It is no big deal. Question number 56. 56 is not done. 57 पे आया है. 56 56 is missing over here. ठीक है, पहले 57 हम लोग करते हैं. Calculate the average molecule per kilomole. Okay, remember the formulas which I had told you. What is kinetic energy of a gas? 3 by 2 PV, which is 3 by 2 nRT. Do you remember this thing? Hello. What is kinetic energy per mole or per kilomole? Is 3 by 2 RT. Can you tell me what is kinetic energy per molecule? Hello. 3 by 2 KT. Yes or no? And you know what is K stand for? Yes, sir. R by A, where A stands for Avogadro's number. What is kinetic energy per mass? 3 by 2 RT by mu. What is kinetic energy per volume? 3 by 2 P. Hello. Sir, where have you done all these things? I have done this in the recording. Hello. Yes or no? I have done this in the recording. Now, what are they asking you? Come on, read. Calculate the average molecular kinetic energy per mole or per kilomole. What is the formula? 3 by 2? 3 by 2 RT? Arey man, what is, are you there with me or not? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. What is R ka value? 3.8.31 into 10 is to 3 because we are dealing with kilomole. Huh? Into T. How much is time given? 120. Temperature given 27 degrees Celsius will become 300 Kelvin. Hello. This answer will come joule per kilomole dash. So what are they asking you else? Per molecule also they ask you, KG. right? Per kg also. Per kg means this. So I can do one thing. See, it is 3 by 2 RT by mu. So this answer is 3 by 2 RT. Hello. Arey man, Just what divide happened? by mass. Just divide by mass. So either you can do like this or you can do 3 by 2 R is 8.3 into 10 is to 3 into 300 divided by molecular mass. How much is that? Oxygen. It will become 32 into 10 raised to minus 3. It will become joule per kilogram. Correct or not? Hello. And if they ask you what is kinetic energy per molecule, it will become 3 by 2 R by A into T. R is 8.31 into 10 raised to 3 into 300 divided by Avogadro's number, which is given as 6.02 into 10 raised to 23. It is joule per molecule. Yes or no? Hello. This much energy per molecule. Hello. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. You're gone or what? No, no. So fine. Yes, sir. Yes, sir. I have mistaken one thing. It is 127 degrees Celsius. So it will become 400 Kelvin. Na? Hello. Yes, sir. 400 Kelvin. Correct. Na? And if they ask you what is kinetic energy of a gas, you can apply this formula. That will be joules. And if they ask you kinetic energy per volume, you can do 3 by 2 P. 3 by 2 P. Okay. P you can find it. Hello. Yes, sir. Okay. PV is nRT say P you can find it. But volume दिया ही नहीं है तो this will never be asked only. But if they ask you it is joule per meter cube. Hello. Yes or no, sir? So this is the whole concept based question based on this much. Achha, 56 is same only. Yeah? It will come this part is 56. If you see the 56th question, they have asked you this only. They have asked you kinetic energy of a gas. What is kinetic energy of a gas? PV. 3 by 2 PV. 3 by 2 PV. 59th question. So good question. Two vessels A and B are filled with the same gas, where volume, temperature, pressure in the vessel is twice of that of volume, temperature, and pressure in vessel B. I can say that. What can you say, beta? Okay, for gas A, vessel A mein, how much is pressure? Come on, man. Hello. Pressure is twice the volume. Hello. Yes or no? Twice of B, sir. And यहाँ पर pressure in B is P, volume in B is V. B and T. P. Correct or no? Calculate the ratio of number of molecules in the gas.
So whenever I want number of molecules, I apply PV's NRT. Yes, sir. Yes, sir. But you know what does this stand for? Number But I need number of molecules. So can I divide and multiply by Avogadro's number? Hello. What happened? People are all going bouncer, man. Hello. So this will Sir. become PV is NKT. Hello. Yes, sir. So what is N equal to? I need Na upon Nb will become Pa upon Pb into Va upon Vb into Tb upon Ta. Can you do it? Can you do it, man? Hello. Have I done it correctly? It's wrong. Correct, है ना? Pa by Pb is 2. Va by Vb is also 2. And Tb by Ta will become half. Come on, tell me fast. Yes, sir. I hope you all must have done it. This formula is in terms of number of moles. Huh? And this formula is in terms of number of Molecules. molecules. Okay. 75th question. Listen to me. Given the values of two principal specific heat is Cp and Cv. They have given you Cp and Cv. Eh? Cp is given us how much? 3400 calorie per kg Kelvin. Cv is 2400 calorie per kg Kelvin for oxygen gas. Which gas? Hydrogen gas, sorry. Hello? Find Yes, the value sir. of J where R is given us this much. R is given us this much. Okay, what is the difference between this formula and R ka formula? Do you remember? Hello? What is the unit difference between R and Cv and Cp? Come on, man, it is very simple question. Hello? What is the difference? Can you see what is the difference between Cp, Cv and R over here? The unit, So na? calorie and joules. These two are in calorie, beta. What happened, man? अरे बोलो यार, ये दोनों किसमें किसमें ये किसमें जूल में? हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कैसे करना है इसको, ध्यान दो, मेरी बात सुनो, एवरीवन जस्ट पे अटेंशन। ये फॉर्मूला सुना है सब लोग ने, मेयर्स रिलेशन सुना है क्या? Cp डैश माइनस Cv डैश इज आर, ये सुना है? हेलो, ये सुना है क्या? Cp माइनस Cv इज आर। हेलो, प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेयर्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो। Specific heat of gas at constant pressure, but this is the wrong. It is molar specific heat of gas at constant pressure. याद रखना, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा। गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका यूनिट क्या आएगा पता है आपको? सीपी का जूल या कैलोरी, जूल और कैलोरी चलेगा ऊपर, पर नीचे आएगा किलो मोल केल्विन या मोल केल्विन। ये दिख रहा है? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये भी जो आएगा इसको बोलते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
यूनिट क्या रहेगा इसका, जूल और कैलोरी ऊपर चलेगा, नीचे आएगा मोल या किलो मोल केल्विन, और इसका भी यूनिट वही रहेगा, इसका भी यूनिट वही रहेगा। अच्छा, हाउ टू कन्वर्ट मोल्स टू मास, ये मास है ना, अरे हेलो, इस स्पेसिफिक हीट का नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट का नाम दिया है, क्या नाम दिया है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, अरे भैया इन दोनों को क्या बोलते हैं पता है क्या, इन दोनों को बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट at constant pressure and volume. Hello, are you all there or ran away? Yeah, got it, sir. Constant volume. Acha, how to convert this guy into that one, how to convert mole to mass, mole to mass, mole to kg? अरे यार केमिस्ट्री कुछ पढ़ा नहीं है क्या, क्या और बाउंसर क्या बोल रहे हो यार आप लोग, हेलो, क्या इसको, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सीपी डैश को लिख सकते हैं म्यू सीपी माइनस म्यू सीवी इज आर, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स याद है क्या, हेलो, यार ये फॉर्मूला पता है क्या, n इज m बाई म्यू, ये पता है, ये पता है कि इतना भी नहीं आता है, तो Yes, sir. m will become n into म्यू ना, ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, केजी में आएगा, ये किस में आएगा, किलो मोल में आएगा, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से, हेलो बोलो, तो समझा गया मैंने क्या किया। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, अगर हम मोलार में बात करेंगे तो यही रहेगा, मगर अगर हम प्रिंसिपल में बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, सीपी माइनस सीवी विल बिकम आर बाई म्यू। हेलो, Yes, sir. फॉर्मूला आएगा, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, इधर देखो, अगर मैं बोलूं सीपी डैश माइनस सीवी डैश इज आर, इसका मतलब तीनों किसमें है, दीज आर ऑल मोलार। और अगर मैं आपसे कहूँ इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, सीपी माइनस सीवी इज आर बाई म्यू, ये क्या है दोनों, इसमें ये प्रिंसिपल है, Principal. प्रिंसिपल मतलब केजी में है, इसका यूनिट रहेगा जूल पर, हेलो, इसका यूनिट रहेगा जूल पर किलो मोल केल्विन। इसका यूनिट किस में रहेगा, समझा क्या, अभी इसको रट्टा मार लो, हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अभी कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, विच फॉर्मूला आई नीड टू यूज, So the principal one. प्रिंसिपल वन, बिकॉज आंसर में प्रिंसिपल दिया है क्वेश्चन में, बट वन मोर डिफरेंस इज देयर, व्हाट डिफरेंस इज देयर, भाई आर का और इसमें भी फर्क है, ये भी फर्क दिख रहा है आपको, हेलो, Yes, sir. ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला डिराइव किया मैंने, करेक्ट है बेटा, Yes, sir. हाँ भाई, यस सर तो कह रहे हो सब लोग, ओके, इसमें ना बहुत डिफरेंस होता है और पूछा जाता है ये नीट के अंदर, सीपी माइनस सीवी, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, बराबर है, बट एक लफड़ा है इसमें भी, क्या प्रॉब्लम है कि ये कैल में और वो जूल में, अच्छा कौन बड़ा होता है, कैल बड़ा है कि जूल बड़ा है, कैल बड़ा है कि जूल बड़ा है, कैलोरी इज बिगर, 1 कैलोरी इज हाउ मेनी जूल्स, 4.2. बहुत सही है, इतना आता है सबको, करेक्ट है, मतलब Yes, sir. कैलोरी को हमको जूल में लाना है या जूल को हमको किस में लेके जाना है, कैल में, सही है, हेलो, Yes, sir. there will be a conversion factor, now what is the conversion factor, I'll use this formula, that is to show or short,
ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? Cp माइनस Cv इज R बाय म्यू। ये तो मिल गया। ये किस लिए? बोलो यार, प्रिंसिपल के लिए। अच्छा, और एक लफड़ा है, ये दोनों किस में है? कैल में। और ये किस में है? जूल में। अब मैं किसको कन्वर्ट करूं, मुझे बताओ। कैन आई से इन दोनों को डिवाइड करूंगा कि मल्टीप्लाई करूंगा मैं जूल के लिए? multiply, मल्टीप्लाई, क्योंकि कैलोरी बड़ा है ना भाई। अभी यार मेरे को बोला बताओ, $1 इज हाउ मेनी रुपीज, तो आप क्या डिवाइड मारते हो कि मल्टीप्लाई करते हो? क्या करते हो? $1 multiply, मल्टीप्लाई करेंगे ना 80 रुपए से, 75 रुपीज से, बराबर है क्या नहीं है? तो बड़े यूनिट में हमेशा क्या होता है? क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। हेलो मैन, व्हाट? ओके, आई डोंट वांट टू गो टू दिस लेवल यार। अभी आपको समझ में आया? तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ना बेटा, इसको कहना इसे एक कन्वर्जन फैक्टर जे से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, चलेगा? हेलो, yes sir, अभी दोनों हो गए एक समान। अभी जे को नीचे ले लो, जे को, या तो जे फाइंड करना है ना आपको, तो जे ही तो चाहिए। विल बिकम R बाय म्यू Cp माइनस Cv। बोलो क्या फाइंड कर सकते हो? और जे का वैल्यू वही आएगा आपको, कितना है बोले थे आपने? 4.18 के 4. आसपास जूल पर कैलोरी। इतना आपको आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, दिस यू विल गेट, हाँ, दिस इज द आंसर। लिख मत देना ऐसे ही। Yes. हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? इंपॉर्टेंट sir. है ये, इंपॉर्टेंट है ये। नीट में पूछ चुका है ये, नीट में ये पूछ चुका है। लोगों को पता ही नहीं था डिफरेंस Cp माइनस Cv, R कब लेना है, R बाई म्यू कब लेना है, J से कब डिवाइड करना है। हेलो, गेटिंग इट? I hope you all have understood this, huh? Those who are attending. Yeah, sir. भाई बाद में एंड में मिस्टेक मत करना भाई प्लीज। वीडियो नहीं देखा और ऐसे मत करो प्लीज। इधर, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अभी फटाफट। चलो, अभी ये वाला क्वेश्चन वही टाइप का, डिफरेंस बिटवीन मोलार स्पेसिफिक हीट दिस मच इज दिस मच। मोलार स्पेसिफिक हीट मतलब क्या दिया है? ये क्या है? क्या ये क्या है? ये भाई क्या है Cp ये? dash minus Cv dash, वेरी गुड, आर दिया है एक्चुअली बेटा, आर दिया है। हेलो, आर है ना, विच इज 8000। हेलो, yes sir, मोलार स्पेसिफिक हीट ये है। क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में ही गलती है। क्या क्वेश्चन में क्या गलती है? वो बोल रहा मोलार है और यूनिट केजी में लिखा है। हेलो, हेलो, yes Yes, sir, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? ऐसे होता है क्या कभी? ओके, केजी माइनस केजी तो केजी में होगा ना, ग्राम में लिख लिया उसने। गेटिंग इट और नॉट? ये चीज रॉन्ग है। गेटिंग इट? हेलो, yes, sir. या तो इसका यूनिट रॉन्ग है, दोनों में से एक चीज रॉन्ग है। मैं एक काम करता हूँ, यूनिट ही रॉन्ग बना देता हूँ, वरना हमको सब कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये इसको क्या कर दूंगा मैं, चलेगा ना भाई? हेलो, Yes, sir. अब सही है। Cp डैश माइनस Cv डैश इज इक्वल टू 8000 जूल पर मोल केल्विन या किलो मोल केल्विन। रेशियो ऑफ Cp एंड Cv दिया है। Cp डैश और Cv डैश का यूनिट क्या है? रेशियो कितना है? गैमा होता है। 1.6. yes, कैलकुलेट द टू मोलार्स। अरे यार, ये तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। हेलो, आता है कि नहीं आता है? हेलो Yes, sir. यार, इसको, अरे यू नो हाउ टू डू ना, क्या लिख सकता हूँ? Cp डैश इज 1.65 Cv डैश, In substitute. इसको उठाओ और इधर डाल दो। क्या हो रहा है? हेलो, Yes. Cp डैश और Cv डैश का यूनिट मिलेगा। अच्छा, यूनिट क्या आएगा इसका? जूल पर क्या? Kilomole Kelvin. किलो, जो दिया है ये यूनिट वही आएगा। अब इधर मिस्टेक से जो दिया था वो लिखना है, किलो मोल केल्विन आएगा या मोल केल्विन आएगा, बिकॉज मोलार बोला है उन लोग ने। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके फाइन। तो प्लीज रिमेंबर, आई अगेन रिवाइज द फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था? Cp डैश माइनस Cv डैश इज R, दिस इज फॉर व्हाट सर? सेकंड फॉर्मूला क्या था? Cp माइनस Cv इज R by mu when it is principal. ओके, याद रख लेना ये चीज प्लीज। केमिस्ट्री में कुछ किया है क्या? ऐसे कुछ करते हैं ना ऐसे तो? हेलो, डू यू नो इट?
Yes, sir. करते ही रह गए यार आप लोगों ने। मतलब कल सुबह मैं थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो इधर आ जाओ। क्या बात कर रहे हो सर, 77 सब गया, अभी आ रहा है सीधा। ये सब सम्स आप लोग थोड़ा ट्राई करना बेटा। हेलो, मैंने सब स्टार मार्क सम्स तो ले लिया है, बाकी जो अनस्टार मार्क सम्स है ना, हेलो हेलो, we are Yes, sir. not going to yeah, leave sir. we are not going to leave any theory people. Okay, फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स का। फिर से एक बार आई विल बी डूइंग रिवीजन ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल चैप्टर्स, ओके, with you all, so don't Yes, worry sir. about anything, don't worry about the theory people, don't worry about anything। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे 1 महीने का क्रैश कोर्स हम लोग थियरी के साथ वाले के साथ में करने वाले हैं। ओके, गेटिंग ना व्हाट्स हैपनिंग, जरा भी कोई टेंशन मत लो, आप लोग पढ़ाई करते रहो बस, वी आर देयर विद यू, डोंट वरी। ठीक है, चलो यार किधर गया, 122 पर आते हैं। अच्छा 122 जो है अभी रेडिएशन का है। क्या ताहिर सर ने आपको रेडिएशन वाले सम सिखाया, चैप्टर सिखाया है? हेलो, Yes, sir. theory radiation is Yes, sir. done ना with you all, radiation Yes, sir. basic Yes, sir. formulas are done with you all, so I'll be starting यार। आर्यन आप लोग को आता है ना, रेडिएशन पढ़ा हुआ है ना आप लोग का, नीट वाले Yeah, जेई yeah. वाले, या सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूलाज ओवर हियर एंड ठीक है ना। और नेक्स्ट संडे आई विल बी डूइंग थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर। अच्छा एक मिनट यार, एक चीज याद आई मुझे, जितने भी थियरी वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स कल से सुबह से बैठेंगे। आई विल बी डूइंग थर्मोडायनेमिक्स विथ ऑल द डेरिवेशंस, थियरी के रूप से पढ़ाऊंगा मैं। हेलो, सो Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर आप लोग को बैठना है या वीडियो देखना है, दोनों में से एक करना है। या सुबह 7 बजे बैठो या तो वीडियो देखो, थर्मोडायनेमिक्स सबको देखना पड़ेगा। आई विल बी डूइंग ऑल द डेरिवेशंस ऑफ ऑल द थिंग्स। बेसिक चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी रहेगी, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है। मैं थोड़े अच्छे लेवल से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक लेकर जाऊंगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 122 व्हाट इज गिवन, द एमिसिव पावर इज गिवन। कुछ याद है, एमिसिव पावर का फॉर्मूला याद है? एमिसिव पावर इज Q by डिफाइंड, 80. वेरी गुड, अरे वेरी गुड। हाँ बोलो आर्यन, क्या हुआ? Sir, this is from which chapter, sir? Because this is chapter modern है। physics. के अरे सेम चैप्टर है, same रेडिएशन chapter ना? Okay, okay. पेज नंबर 115 डाइजेस्ट का। हाँ, चलो, हाँ. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर का नाम है। Yes, sir. Yes, sir. नीट में हम लोग इसको ट्रांसफर ऑफ हीट में करेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, लास्ट चैप्टर। हेलो, Yeah. Yes, sir. ओके, नीट और जेईई में थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। एमएसए पावर का फॉर्मूला किसने बताया था? वेरी गुड बेटा। ई का फॉर्मूला क्या है? Q by 80, sir. अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ गिवन टेम्परेचर, बराबर है क्या? वेरी गुड, क्यू बाई टी। अभी देखो ना क्या क्या दिया हुआ है यार, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? क्यू है ना, ये क्यू है कि क्या है? देखो बराबर, देखो क्या है ये एमिसिव पावर है। हेलो, दिस इज ई, इज गिवन एज ई। हेलो, व्हाट हैपेंड? बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये ई दिया है, एमिसिव पावर बोला है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इन 20 सेकंड्स? तो क्या चाहिए? क्यू चाहिए। क्यू विल बिकम ई इनटू ए इनटू ई। क्या है भाई? 0.5। ए कितना है? 0.02। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। यार मिलेगा आंसर, किस में आएगा? किलो कैल में आएगा, बिकॉज ये किलो कैल में ना, देखो ना इधर। हेलो, ये दिख रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. this answer will come in kilocal only. This is the heat radiated. Please remember this formula, it is a very important formula and asked many times in the exam for 2 marks। बोर्ड के क्वेश्चन में बहुत बार आपको जो स्टार्टिंग में एमसीक्यूज रहते हैं ना, एमसीक्यूज उसमें पूछा जाता है ये 1 मार्क या 2 मार्क के लिए। 2 मार्क नसीब अच्छे रही है तो 2 मार्क, वरना 1 मार्क के लिए तो पूछा जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 130। अच्छा, आपने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा है बेटा? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, Yes, sir. व्हाट इज द फॉर्मूला? लैम्बडा एम इनटू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट ना। हेलो, क्या हो रहा है? याद है? लैम्बडा एम इनटू टी इज व्हाट? अ कांस्टेंट। Sir, you've done this in the recorded lectures. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज डन, नॉट डन? So I'll have to check, sir. प्लीज चेक। आई हैव डन, किया है। आप लोगों ने किया है ताहिर सर के साथ? Yes, sir. Tahir sir has done it. Lambda m into t is nothing but a constant, or you can say lambda m is inversely proportional to temperature. याद है? और if I remove the proportionality sign, lambda maximum will become b by t. Clear? Hello. Yes, sir. ठीक है। आर्यन, आपको याद नहीं आ रहा है? So I think I might have done it, but I've forgotten. I'll just check through. आशना, do you know? आशना, आशना को याद Yes, है? sir. Yes, sir. अच्छा, याद है, आपको याद है। अब्बास छावनी वाला भाई, आपको याद है? अब्बास, आपको याद है? नहीं याद है। अब्बास इज नॉट देयर ओनली। ठीक है, ठीक है। तनीषा भट्ट, डू यू रिमेम्बर? No, sir, I don't remember. ठीक है, इधर देखो, मैं थोड़ा सी सिखा देता हूँ, इधर ध्यान दो। हेलो, Yes, हेलो, sir. Yes, sir. थोड़ा सी मैं सिखा देता हूँ। एक एक क्या होता है, कभी कभी है ना, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या भाई? Radiation. अब क्या किया, एक इंसान था जिसका नाम था प्लैंक, नाम तो सुना रहेगा उसका, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ये थियरी, वो थियरी। हेलो, Yes, बराबर sir. है? Yes, sir. अब उसने एक ग्राफ बनाया ऑफ रेडिएंट पावर या रेडिएंट एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ। उसने एक गर्म बॉडी लिया, सपोज ब्लैक कलर का बॉडी लिया, और उसको हीट किया 3000 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस? 3000। हेलो यार, बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. फिर sir. उसने उसको हीट किया, और इसमें से उसने जो रेडिएशन निकल रहा है ना, एनर्जी का रेडिएशन जो निकल रहा है, उसको उसने नापा, वेवलेंथ नापा उनका सबका, के पास एक डिटेक्टर था, उससे नापा उसने। तो उसको उसने फिर उसका रेडिएंट पावर का ग्राफ बनाया कि इतने लैम्बडा के लिए इतना एनर्जी, वो लैम्बडा के लिए इतना एनर्जी, बिकॉज ब्लैक बॉडी विल एमिट ऑल द रेडिएशन ना, वट एवर इट इज इंसिडेंट। बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो ग्राफ उसको कुछ ऐसे कुछ मिला, ऐसे कुछ मिला। ग्राफ कैसे? नॉन यूनिफॉर्म है। हेलो, ये लैम्बडा है, सॉरी, सही है ना? दिस इज एट अ गिवन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर पकड़ता है? 3000 के। सही है क्या? हेलो, Yes, sir. कैन आई से, वो क्या बोल रहा था कि जैसे लैम्बडा बढ़ रहा है वैसे उसका पावर भी बढ़ रहा है एट अ सर्टेन लैम्बडा। इसको बोलते हैं लैम्बडा मैक्सिमम, वे पावर इज मैक्सिमम। हेलो, इसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। हेलो, Yes, sir. फिर ये जैसे और लैम्बडा बढ़ता गया, पावर घटता गया। फिर उसने क्या किया, इसको है ना 4000 डिग्री पे हीट किया, फिर से उसने रेडिएशन देखा, तो उसका ग्राफ जो था ना, उसको फिर से एक ग्राफ मिला। द ग्राफ वाज समवॉट दिस वे। ये कितना डिग्री पे? 4000। कैन आई से दिस इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन फॉर 4000 डिग्री? अरे बोलो यार। Yes, sir. Sir. फिर उसने इसको 5000 डिग्री पे हीट किया। कितना डिग्री? 5000 डिग्री पे हीट किया।
फिर से उसने ग्राफ प्लॉट किया, या 5000 या 7000 जो भी बोल लो। 7000 उसने देखा वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इधर आ रहा है, मतलब व्हाट कैन यू से, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस wavelength of maximum emission decreases। हेलो यार Yes, sir. देखो ना यार, ऐसे हो रहा है ना, बोलो। तो कैन आई से लैम्बडा मैक्सिमम इज इनवर्स टू टेम्परेचर? क्या हो रहा है? Yes, sir. तो इसका बेस्ट Yes, एग्जांपल sir. Yes, sir. मैंने शायद एक एग्जांपल दिया है, बंसन बर्नर। आपके केमिस्ट्री लेबोरेटरी में बंसन बर्नर होता है ना? सबके घर में फ्लेम भी है ना यार। Yeah. Yes, sir. फ्लेम का अलग अलग कलर होता है, रेड कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर, ऑरेंज कलर, बराबर है। कौन सा फ्लेम का कलर सबसे हॉटेस्ट है? सबसे गर्म वाला Blue. कौन सा फ्लेम? ब्लू। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा ना, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। एंड सबसे सबसे ठंडा कौन सा है? गर्म है, सब गर्म है, Red. बट रेड सबसे। Red. ये चीज शायद मैंने रिकॉर्डिंग में की है, मुझे याद है। हेलो, आई डोंट नो। Yes, Yes. sir. The universe expanding one. आई हैव डन इट यार, मुझे याद है कुछ ना कुछ तो। Yeah, yes, sir, yes, I remember. ओके, हाँ अभी याद आ गया। हाँ So अभी that मुझे when you were saying that वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, ये याद आ गया सर। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अच्छा ये फॉर्मूला मिल गया, अभी यार हो गया। देखो कितना है, ये क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स। तो लैम्बडा मैक्स चाहिए ना तुम्हारे को। बी कितना Yes, दिया sir, है? yes, sir. बी इज 2.897 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर 5800 मिल गया मीटर में। बोलो हेलो। Yes, sir. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये सब कुछ क्या, कुछ एग्जांपल्स एकदम फिक्स्ड होता है ताकि लोगों को है ना याद हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं यार, टाइम वेस्ट मत करें, तो ध्यान दो। 133 पे आता है। कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द टेम्परेचर इन द डायग्राम? डायग्राम टेम्परेचर कितना है? 280. 280 Kelvin. क्या पूछा है? अरे बोलो यार। और बी का वैल्यू याद करके जाना पड़ेगा। बी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? बी का वैल्यू तो मालूम है ना, 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये याद करना पड़ेगा। हेलो, लर्न बाय हार्ट। हेलो, Yes, sir. तो यहाँ से लैम्बडा मैक्स मिल जाएगा ना, लैम्बडा मैक्स विल बिकम B/T। गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. Sir, this B is Wayne's question, no? B is Wayne's constant, इसको बोलते हैं Yes, Wayne's sir. constant। Millikelvin, no? No, meter Kelvin. Sorry, मीटर sorry. केल्विन। Meter Kelvin, yeah. हेलो, Yes, sir. अच्छा और एक चीज पूछा है, वेयर डज दिस लाई? तो याद रखना ये चीज, इट इज R मेवक्स गैमा। ये चीज कुछ भी लेक्चर बैठेगे मेरा तो फायदा होगा ही। R क्या है? रेडियो वेव्स। M क्या है? माइक्रो। Micro. ये क्या है? Infrared. Visible. Ultraviolet. एक्सरेज, गैमा रे। Yeah, समझा? yes, sir. अच्छा ये जो विजिबल रेंज है वो ऐसा उल्टा है, मतलब ऐसे जाता है, विबग्योर ऐसे जाता है। हेलो, हेलो, Yeah, sir. ऐसे नहीं। यहाँ का लैम्बडा, रेड का लैम्बडा क्या होता है सबसे? Right, sir. यहाँ का लैम्बडा मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो लैम्बडा बढ़ेगा, Frequency increase. और ऐसे आप जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. अच्छा यहाँ पर देखो, इसका आंसर जो आ रहा है ना, लैम्बडा मैक्सिमम का जो आंसर आ रहा है, दैट इज 1.035 इंटू 10⁻⁵। हेलो,
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, आपको रेंज दिया रहेगा, कोई याद तो नहीं कर सकता यार ये रेंज से ये रेंज में ये फ्लॉल होता है, वो पोर्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो आपको है ना रेंज दिया रहेगा, ये कम है कि ज्यादा है, 8000 एमस्ट्रॉन्ग से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना, 1-5 है। अगर आप Sir, इसको more, na? Yes. Yes, ऑब्वियसली sir. ऑब्वियसली अगर इसको एमस्ट्रॉन्ग में भी एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा यार? माइनस और 5 0, 1 2 3 4 5 ना, 1 0 3 5 0 0, ये हो जाएगा ना? Yeah, sir. अरे बोलो भैया, yes or no? Armstrong. Yes, sir. So this is wavelength is greater than red color. तो या तो वो ये रीजन में लाई करेगा ना, या तो इंफ्रारेड बनेगा या तो माइक्रोवेव बनेगा। हेलो, Yes, sir. अभी उसके आगे तो रेंज है ना, मुझे थोड़ी पता है यार, कंप्यूटर थोड़ी है हम लोग के, इंफ्रारेड माइक्रोवेव सब पता रहे हमको। समझ में आ रहा है क्या? Sir. Sir. या टेल मी। So you know, like in chemistry, like you know, I think physics maybe they give like you know the rough values of each. रेंज दिया रहेगा बेटा, ये 8000 से इधर है, ये इंफ्रारेड हाँ। 8000 से इधर है, ये दिया रहेगा, और माइक्रोवेव भी दिया रहेगा यार, इतना बहुत So टाइम in the question only they will give. Okay, okay, sir. दे विल गिव यू। देखो यार, उससे फिजिक्स का कोई लेना देना है नहीं, वैल्यू रट्टा मारने से। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yeah, yeah, sir. So we don't need to learn, no? यू नीड नॉट लर्न, है ही नहीं पोर्शन के अंदर, कहां से 11 में होता Okay, है, okay. 11 में Not for JEE also, na, sir? नहीं 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 नहीं, पूछा ही नहीं। जेई में Okay, क्या okay. करना है उनको, कॉन्सेप्ट से मतलब है बेटा, जेई में क्या रट्टा मार के क्या करना है उनको, ठीक है। चलो आगे, यस और नो सर? हेलो, Yes, sir. अब हम लोग आते हैं 146 की तरफ। 146 क्वेश्चन, बस 2-4 क्वेश्चन और है, प्लीज बी विथ मी, ये फिनिश इट ऑफ है। 146। अच्छा, स्टीफन्स लॉ याद है किसको? एकदम फेमस है यार स्टीफन्स लॉ तो। हेलो हेलो, स्टीफन्स लॉ। Yes, sir. हाँ, टेल मी द फॉर्मूला। Q by 80 is E Q by sigma हाँ, T raised to 4. Q by T लिखता हूँ मैं, लिखूंगा E सिग्मा A, इधर आ गया ना, T4 माइनस T04। हेलो हेलो, चलेगा क्या? Yes, sir. व्हाट इज T0? टेम्परेचर ऑफ, दिस इज व्हाट, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, दिस इज द एरिया। सिग्मा को क्या बोलते हैं? स्टीफन्स कांस्टेंट। E को बोलते हैं एमिसिविटी, एमिसिविटी इज ब्लैक बॉडी का 1 होता है, बराबर है ना, एंड Yes, sir. लेस देन 1 फॉर एनी अदर बॉडी, एंड Q by T इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। Q by T जूल पर सेकेंड, और इसको रेडियंट पावर के नाम से भी जानते हैं। हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, नहीं आता है वीडियो देखो। ओके, I'll rub this again. Start with fresh. Calculate the energy radiated in 1 minute. Energy radiated मतलब क्यों मांगता है? 1 मिनट मतलब टाइम कितना है? ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया कितना है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टाइम पास वाले सम्स ऐसा हुआ है। टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन, सिग्मा दिया है। विच फार्मूला? Q by T is E सिग्मा A T4। सर T04 क्यों नहीं लिया? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया ही नहीं है, निग्लेक्ट कर लो। तो Q क्या हो जाएगा? खाली E सिग्मा A छोटो T इंटू T4। E कितना है? ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का E कितना होता है? 1। 1. सिग्मा इज 5.7 इंटू 10 रेज टू -8। एरिया गिवन 200 इंटू 10 रेज टू -4। टाइम दिया है 60, और टेम्परेचर 400 रेज टू 4। हेलो बोलो। अच्छा देखो, इसको है ना मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, थोड़ा आसान है। इसको लिख सकता हूँ 5.7 इंटू 200 इंटू 10 रेज टू -12। हेलो 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 बोलो। अरे 8 और 4 -12 होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. हेलो। अच्छा, व्हाट इज 4 रेज टू 4? 16 256 बराबर। हेलो, Yes, sir. और ये 2 0 है, 2 0 रेज टू 4 क्या होता है? 10 raised to 8. 10 रेज टू 8 हो गया, सही है। Yes. हेलो। अच्छा 8 9 10 11 11 और -12 कितना होता है? -1।
हेलो, गॉट इट? सही है, Yes, बोलो। sir. Yes, तो sir. ऐसे ऐसे आपको सॉल्व कर देना, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा, अगर ऐसे होता, सुनो हाँ मेरी बात, आगे आएगा तो ठीक है, आगे आ जाएगा, हाँ आगे आ जाएगा, तो मैं कर देता हूँ। 147 147 अ 60 वॉट बल्ब, 60 वॉट मतलब क्या दिया है, Q by T दिया है। The emissivity is 0.5, the area of cross section दिया, area of the surface 5 into 10 is to minus 5, find the temperature, मजा आएगा, T फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला, वही Q by T is, हेलो, Q by T 60 है, E कितना है 0.5, सिग्मा is 5.7 into 10 raised to minus 8, एरिया is 5 into 10 raised to minus 5 into T raised to 4। बोलो हेलो, ये 0.5 उधर जाके डबल हो गया तो ये हो जाएगा 120 into 10 raised to 8, 5.7 into 5 और -5 भी ऊपर गया तो ये बना बराबर क्या, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 1 0, 14, so 12 into 10 raised to 14, 5.7 into 5 का 1/4। हेलो 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 Yes, हेलो। sir. अच्छा, इसको लॉग से कैसे सॉल्व करते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ, देखो इधर, लॉग ऑफ 12 कितना होता है, 2 पॉइंट होएगा कुछ क्या 1 पॉइंट होएगा कुछ, अरे कैरेक्टरिस्टिक, अरे यार बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 पॉइंट समथिंग, 14, 10:14 का क्या रहेगा, इसको बाहर नहीं निकालना, इसको अंदर रखना। हेलो हेलो, ये न्यूमरेटर बना, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, ये क्या है 0 पॉइंट प्लस 0 पॉइंट समथिंग, सही है क्या, इन दोनों को निकालो, माइनस करके उसका क्या करना पड़ेगा, हेलो 1/4 डिवाइड मारो, फिर उसका क्या ले लो, Anti-log. यू गेट इन केल्विन, गेटिंग इट। Yes, sir. यार इसमें थोड़ा अच्छा खासा कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, वरना नहीं समझ में आएगा आप लोग को। गॉट इट ना, ठीक है। चलो 148, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब क्या कंपेयर करना है, Q by T 1 अपॉन क्या, Q by T 2 फ्रॉम मेटल स्फीयर, पहले वाले का टेम्परेचर कितना है 827 प्लस 273 1000 केल्विन, नहीं 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 1100, हेलो, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम स्फीयर, दूसरा कितना है 400 200 700 केल्विन, हेलो, एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज हाउ मच 300 केल्विन। हेलो, आर यू गेटिंग इट? अरे कुछ आवाज आ रहा है Yes, क्या sir. मेरा? Yes, sir. Yes Yes, or sir. no? Yes, बस sir. 2-4 समय, बस मेरे साथ में रहो यार, 2-4 समय बस प्लीज। क्यूआईटी का फॉर्मूला क्या है? EA sigma T raised to 4 minus T0 वेरी गुड, raised to कैन आई 4. से क्यूआईटी इज प्रोपोर्शनल, बाकी सब तो सेम है बेटा, ये सब सेम है, कैन आई से क्यूआईटी विल बी प्रोपोर्शनल टू T4 minus T04, कैन आई से, उसे पेज पर लेके जा रहा हूं मैं, कैन आई से Q by T1 upon Q by T2 will become T1 minus T0, T14 minus T04 upon T24 minus T04, T1 कितना है 1100 माइनस 300, 300 है ना, हेलो 300, 300 रेस टू 4 अपॉन नीचे 700 रेस टू 4 अपॉन 300 रेस टू 4, बेटा कॉमन क्या है ऊपर नीचे में, 100 रेस टू 4 कॉमन है, उड़ा दो, 11 4 माइनस 3 4, 7 4 माइनस 3 4, अरे सब मैथमेटिक्स चैंपियन लो, बोलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ 121 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 49 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, हेलो 121 प्लस 9, सर ये सब आप क्या कर रहे हो सर, ये सब हेलो, यस और नो, Yes, sir. चलो इसके आगे करने आता ही है ना आप लोग को, Yes, sir. ये तरीका है हाँ?
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बीच में अटक जाते हैं, फिर सर इट वाज वेरी हार्ड। हमारे कुछ हार्ड नहीं है, देखो एकदम आसान है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ठीक है चलो। 149 and then 151 and 52, बस 2-3 सा ना। देखो इधर, assuming that the temperature of the surface of the sun is 6000 Kelvin, find out the size of a virtual star. Size of the star मतलब क्या ढूंढना है? उसका रेडियस ढूंढना है। हेलो, I want to find the radius of whom? A star, which I don't know. In terms of radius of the sun, मतलब कितना गुना है वो रेडियस ऑफ द सन का, बराबर क्या? ओके, whose surface temperature is this much? टेम्परेचर ऑफ द सन कितना है? 6000 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ द स्टार कितना है? 3000 केल्विन। and the power radiated by the virtual star, power radiated by the star is 25 times power radiated by the sun. Hello, treat both the sun as black body मतलब E1 है। चलो आगे बताओ। पावर मतलब क्या? Q by T ना। हेलो, पावर का मतलब क्या होता है भाई? Q by T। जब भी Q by T दिखता है मतलब सीधा स्टीफन्स लॉ, सीधा। Q by T का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ। E सिग्मा A T4, बट Q by T is पावर ना। बोलो 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 फास्ट, कम ऑन। Can I say P star upon P sun will become T star upon T sun raised to 4? हेलो 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 हेलो, खत्म नहीं हुई ये कहानी। मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया है, दोनों का एरिया भी अलग है। हेलो Yes, हेलो, sir. दोनों का एरिया भी अलग है भाई। कैन आई राइट दिस एज एरिया स्टार अपॉन क्या? एरिया सन। Sun. ई तो सेम है ब्लैक बॉडी, सिग्मा भी सेम है, बराबर क्या? चलो शुरू करते हैं। पावर स्टार अपॉन पावर सन 25 है। टी स्टार अपॉन टी सन कितना है? 300, 3000, 6000। आधा आधा का स्क्वायर 1/4, बराबर क्या? हेलो Yes, Sir, sir. it's 4 raised to So it's 4. raised to 4. रेस टू 4 रेस टू 4 रेस टू 4 रेस टू 4, ये हो जाएगा 16। हेलो, यस और नो? Yeah, yeah, sir. Yes, sir. एरिया स्टार क्या होता है? एरिया 4 पाई स्क्वायर। स्टार बार जो भी होता है वो स्टार थोड़ी हो, ऐसे थोड़ी स्टार होता है। स्टार तो स्पेयर होता है। हेलो यार, अपना ये स्टार थोड़ी है। ये स्टार तो हमेशा, कोई भी स्टार कौन से शेप में होता है? Sphere. Sphere. स्फीयर। वो स्टार थोड़ी है जो स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग हैं। ये स्टार एरिया क्या? 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर क्या? Yeah, yeah. Yes, sir. हाँ भाई, ओके। यार ये तो ढूंढ लो। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, और ये तो मिल गया ना, रेडियस ऑफ द स्टार अपॉन रेडियस ऑफ द सन। एक काम करो, सबका रूट मार दो। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा रेडियस स्टार अपॉन रेडियस सन। तो ये 20 टाइम्स हो गया कि नहीं? Yes, sir. बोलो। Yeah, yeah, sir. ओके बेटा, ठीक है आगे बढ़ता है। चलो दो क्वेश्चन और, नथिंग एल्स। इसमें न्यूटन्स लॉ के सम्स नहीं दिए। अगर न्यूटन लॉ तो हम लोग लेवल 11 में कर लिया ना, वो Yes, sir. कूलिंग का। मगर इधर देना चाहिए न्यूटन्स लॉ, फिर से देना चाहिए। ठीक है, नहीं दिया है तो नहीं दिया, छोड़ो यार। ओके, कंपेयर न्यूटन्स लॉ है ही नहीं ना थियरी में। No, है ही नहीं sir. थियरी, Newton's law of cooling is not there. नॉट देयर ओनली, सही है। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है चलो इधर देखो, कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन। रेट ऑफ एमिशन मतलब क्या? क्यू बाई टी कंपेयर करना है। क्यू बाई टी ऑफ पहले वालों अपॉन क्यू बाई टी ऑफ दूसरों वालों। यार बोलो, पहले वाले का टेम्परेचर 727 मतलब कितना केल्विन? 1000 केल्विन। 1000. दूसरे वाले का 227 मतलब कितना केल्विन? 500 केल्विन। हेलो, और टेम्परेचर नॉट कितना है? 300 केल्विन। यार वही सम है जो अभी किया था थोड़ी देर पहले। Yes, sir. क्यू बाई टी 1 अपॉन क्यू बाई टी 2। चलो सॉल्विंग करते हैं इसका। विल बी T1 4 माइनस T0 4, T2 4 माइनस T0 4। बोलो, 1000 रेस टू 4 माइनस 300 रेस टू 4, 500 रेस टू 4 माइनस 300। क्या कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 100 रेस टू 4 कॉमन निकाल के उड़ा दो। हेलो, Yes, sir. ये हो जाएगा 10 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4, 5 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4। अब क्या करेंगे? 100 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर,
अपॉन 25 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अभी आता है ना करने के लिए सबको? हेलो 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 हेलो, यस और नो, यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। स्लो स्लो में यार मुझे मजा नहीं आती है। देखो पीपल स्टार्टेड ड्रॉपिंग। सृष्टि, ये देखो ये है ना, ये कभी लेक्चर Yes. में, अच्छा यू आर देयर फॉर द लेक्चर टुडे? हाँ Yes, ओके sir. अच्छा। सुजल, आर यू देयर? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी मतलब ई का वैल्यू कितना है उसका? 1। 1. रेडियस कितना है? Based on an evacuated chamber, the temperature of the chamber is this much. This is what? What is this? What is this? T naught. हेलो भाई, T naught है ये। कितना केल्विन? 373. At what rate energy must be supplied? Q by T. So that it maintains its temperature of the body as 110. तो कितना हो जाएगा? 383 केल्विन, बराबर? हेलो, what is Q by T का फॉर्मूला? बोलो। Yes, sir. ये सप्लाई होना चाहिए। E is 1, सिग्मा is 5.67 या जो भी है, n is to -6 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो। सिग्मा मिल गया, E मिल गया। एरिया कितना रहेगा? स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। r is 2.5 सेंटीमीटर, that is -2 का स्क्वायर, बोलो, into T4 that is 383 क्या? रेस टू 4 माइनस 373 रेस टू 4। अभी इज्जत से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसमें कोई कॉमन वॉमन कहां से निकलेगा? हेलो, लॉग टेबल सर। लॉग में माइनस साइन एप्लीकेबल नहीं है। आपको इसका अलग से लॉग ढूंढना पड़ेगा। आया अलग से ढूंढने के बाद हाँ, वही 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 मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, यू आर करेक्ट। तो इसका 4 लॉग ऑफ 2 पॉइंट समथिंग, और उसका क्या? एंटी एंटी लॉग। लॉग। इसको अलग से करो, इसको अलग से करो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यार। इतना साल हो गया, अभी क्या कर रहे हो? हेलो, इसको अलग से ढूंढो, 2 आंसर मिलेंगे, और उन दोनों को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो, फिर से सबका लॉग करो। हेलो, फिर तो सर ऐड ही होगा सब एंड सीधा एंटी लॉग ना। हाँ फिर सीधा, हाँ फिर ऐड होके एंटी लॉग मिल जाएगा। इसका यूनिट क्या आएगा? वॉट में, Q by T है ना। हेलो, I hope you all have understood this KTG and radiation. Tomorrow I am doing, एक मिनट, tomorrow I am doing thermodynamics सुबह में। जो लोग लेक्चर बैठ सकते हैं वो लोग लेक्चर बैठेंगे। मैं हर एक चीज डेराइव करूंगा कल। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फार्मूला, बिकॉज फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। तो मुझे हर एक वर्क डन, हर एक चीज को डेराइव करना है। बेसिक चीजें आपको केमिस्ट्री से आना चाहिए भाई। ये सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब मैं बताऊंगा नहीं। हेलो, उतना तो आता रहेगा ना यार? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो प्लीज अटेंड दीज लेक्चर्स। पूरा एक हफ्ता चलेगा ये लेक्चर्स, एंड ओके आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग बेटा, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है। So then वो beats का thing we'll do it. बीट्स का लेट मी सी क्या बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम हम लोग देख लेंगे। अभी ज्यादा तो So बाकी नहीं है। that day what happened, there were too many sums, na? So you said that we'll stop at beats and then we'll continue it next time ऐसा आपने बोला था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, उसका पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा मुझे। आई जस्ट सी पीडीएफ नेक्स्ट टाइम, याद दिला देना तो थोड़ा एंड में 15 मिनट में हम लोग। So we had done it on 14th September. एक मिनट, बीट है ना, बीट का Yes sir, तो आपको मतलब मिल जाएगा। आई जस्ट सी नहीं होगा तो हम लोग डाइजेस्ट खोल के सम्स कर लेंगे, कोई Okay okay sir. ठीक है ना? ठीक है, Yes चलो sir. थैंक यू वेरी मच, बाय Bye sir, thank you. बाय।